Hello everyone. So my name is Siddharth Kumar and currently I am working at NCR Corporation as a software developer. So today in this video we are going to talk about my EPAM systems interview experience for junior software developer. So guys, जो EPAM system है that is a company which is both service based as well as a product based company. ये जो कंपनी है सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और इसमें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है वो भी होता है. EPAM system में जाने के लिए guys basically there are two ways. The first way is the on campus placement and second is the off campus placement, and there is one more way that is called as the pool campus. So you guys might be aware of the on campus placement. So basically in the on campus placement what happens is that company will come to your campus and then they will recruit the students from that particular campus, right? फॉर द ऑफ कैंपस मतलब ये होता है कि कंपनीज जो होती है वो अपना एप्लीकेशन डाल देती है लिंक्डइन पे या फिर उनके कैरियर साइट पे, एंड एनीवन हु इज एलिजिबल कैन अप्लाई एंड देन द resume shortlisting take place, and after that you are called for the interview. Pool campus mean there are some selected colleges which are known as the premium colleges. So उस सारे colleges में ये जो companies हैं उस कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रोच करती है, मतलब उन सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को एक साथ अप्रोच करती है, उसके बाद उनको एक साथ बुलाती है इंटरव्यू के लिए और उन्हीं सब कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पूल कैंपस. सो ईपैम में मेरा जो प्लेसमेंट हुआ, आई गॉट इनटू ईपैम थ्रू पूल कैंपस. सो पूल कैंपस में दिस एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट till the date when I got my offer letter, it took almost 1 year, like literally 1 year. So I believe for a service based company or basically for a company like EPAM this is too much. Like 1 year matlab there will be very few people who will wait for 1 year to get place in a company like EPAM, right? But that's the reality. You have to wait if you want to get place in EPAM system. So guys, इसका जो शुरुआत थी, like it started in the year 2020. So 2020 में मेरे कॉलेज में आई थी EPAM system, and initially we had a टेस्ट और जितने लोगों ने वो टेस्ट क्लियर किया था, बेसिकली दैट कोडिंग टेस्ट, वो लोग एक प्रोग्राम में गए थे, इसको बोलते हैं पीईपी, ईपैम पीईपी प्रोग्राम. So in that test basically it was conducted on a website called as My Autonomy. In that we had two coding questions, and out of that I solved both the coding question, and after that I was selected for PEP program. So what is this PEP program guys? So PEP program जो होता है वो EPAM के लिए वो EPAM लेता है, जो कि और उनको लेता है जिनको वो मतलब हायर करना चाहता है अगले साल, उनके लिए होता है. इस प्रोग्राम में हर एक वीक इन एट वन पर्टिकुलर डे, फॉर अस इट वाज ट्यूसडे, 2 आवर्स की एक क्लास होती है, बेसिकली एक सेशन होता है जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, और आपको 1 वीक ऑफ टाइम दिया जाता है एक असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, और असाइनमेंट जो है कंपनी को सबमिट करने के लिए. तो मेरा ये जो जब मैं पीईपी में आ गया, पीईपी प्रोग्राम ईपैम में, उसके बाद ऑलमोस्ट जनवरी 25 से वो स्टार्ट हुआ था, और हर एक ट्यूसडे हम लोग की क्लास होती थी अराउंड 2 आवर्स के लिए, एंड फ्रॉम 8 PM to 10 PM. और क्लास के एंड में हमको एक टास्क मिलता था, एंड दैट टास्क वी हैड टू कंप्लीट इन 1 वीक. मतलब जो नेक्स्ट टाइम सेशन से पहले हमको सबमिट करना था, गिटहब पे अपलोड करके उनको लिंक सेंड करना था. सो दैट थिंग आई गेस दैट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 3 months. पैंडेमिक से पहले तक ये पूरा कंटिन्यू है. इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, द थिंग्स दैट यू विल बी टॉट will be like Java and things related to Java, because in this company mostly all the people works on Java. तो आपको Java सिखाया जाएगा. Java में threads हो गए, collections हो गए, then exceptions and all the other topic of Java you will be taught, and some of the topics related to JavaScript also. JavaScript भी, HTML, CSS, वो सारे topics भी आपको पढ़ाए जाएंगे. वंस यू आर डन विद दैट पीईपी, जो कि हम लोगों के लिए जो था, क्योंकि पैंडेमिक आया था तो ये स्टॉप हो गया था. आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ जून दे कंटिन्यूड अगेन, एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ द पीईपी आपको जो है अराउंड 3 वीक्स का टाइम मिलेगा. ओके, तो उस 3 वीक्स में आपको बोलेंगे कि जितने भी सेशंस हुए उसमें जितना कुछ भी आपको पढ़ाया गया, आपको वो सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम मिला वो 3 वीक्स में, और आपको पूरा प्रिपेयर करना है. और अगर किसी वीक में आपसे अगर कोई क्लास मिस हो गया या फिर कोई असाइनमेंट है जो आपने तब सबमिट नहीं किया, तब आप उस 3 वीक्स के टाइम फ्रेम में उसको सबमिट कर सकते हैं. उसके बाद जो टॉपिक्स जो उन्होंने आपको पढ़ाया इस पीईपी में, उसका टेस्ट होते हैं. टोटल 3 टेस्ट होते हैं. उसमें से पहला जो टेस्ट था एक डेमो टेस्ट था, उसका कोई वैल्यू नहीं था, बस जस्ट टू आप जो है प्लेटफॉर्म के साथ अवेयर हो जाओ, उसके लिए वो टेस्ट हुआ था. एंड आफ्टर दैट वी हैड 2 tests, one on I guess that was on August 14 2020, and one was on 28 August 2020. So हर एक टेस्ट में जो थे 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, and there was only one language for you to choose, that was Java. और
और उसमें से एक जो था नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन और एक था थोड़ा डिजाइन से रिलेटेड, लाइक उसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे लाइक इनहेरिटेंस, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ऑल दोस थिंग, मतलब जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट लगा के उसको कोडिंग को सॉल्व करना होगा आपको। और बाकी जो था अराउंड एमसीक्यूज थे, लाइक ऑलमोस्ट 35 एमसीक्यूज, वो सारे टॉपिक्स पे जो उन्होंने आपको पढ़ाया पीईपी के प्रोग्राम में। ओके, सो टोटल जो ड्यूरेशन था टेस्ट का वो था 1.5 आवर, जिसमें हाफ आवर वाज गिवन टू यू टू डू योर कोडिंग स्टफ एंड remaining time was given to you to do your MCQs. So guys, इसके बाद एक बार आपने जब ये कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस इन द पीईपी प्रोग्राम, वो एक पहला फैक्टर है, जो आपका अटेंडेंस होना चाहिए 70% से ऊपर होना चाहिए। जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया एवरी वीक, उसका जो आपको परसेंटेज होना चाहिए वो मोर देन 70 के ऊपर होना चाहिए। और जो ये टेस्ट 2 है, जो इन्होंने टेस्ट कंडक्ट किए, 2 टेस्ट कंडक्ट किए, उसमें भी जो आपका परसेंटेज होना चाहिए, मतलब उसमें जो आपका करेक्ट आंसर जो नंबर ऑफ आने चाहिए वो भी 70% से ऊपर होने चाहिए। एक बार आपने ये जो है क्राइटेरिया पास कर ली, उसके बाद ये लोग आपके साथ आगे जाएंगे, आगे मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सो उसके बाद ऑलमोस्ट ये अगस्त में मेरा कंप्लीट हो गया था। आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन्होंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो होता है ग्रुप डिस्कशन होता है। सो इन जनरल इफ दे कम टू योर campus for the on campus recruitment, at that time they will call like 15 batch, they will call and they will give one topic to discuss, basically like normal group discussion. But for us, because at that time we had pandemic, क्योंकि हमारे टाइम में उस समय कोविड था, तो इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं था सबको ऑफिस बुलाना और ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करना। तो इसलिए उन्होंने ये जो ग्रुप डिस्कशन जो था, उन्होंने मतलब कि फॉर्मेट चेंज कर दिया इसका, और हमको जो है ग्रुप डिस्कशन जो है ऑनलाइन हुआ। सो ये एग्जैक्टली ग्रुप डिस्कशन नहीं था। तो इसमें प्रोसेस ऐसा था कि हमको एक वेबसाइट का लिंक दिया गया था और बोला गया था अपने मेल आईडी से लॉगिन करने के लिए। उसके बाद उसमें एक प्रोग्राम था। जब हमने उस प्रोग्राम पे बेसिकली क्लिक किया, तो उसके बाद एक इंटरफेस ओपन हुआ और हमको एक टॉपिक मिला, और उस टॉपिक को और देन उसके बाद ही टाइमर स्टार्ट हो गया 1 मिनट का। और जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, तब हमको उस टॉपिक के ऊपर 2 मिनट्स के लिए बोलना था। ओके, सो मेरा टॉपिक था कि कोविड जैसे कि आज बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उस समय कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उस मेरे टॉपिक था कोविड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसको मतलब कि कंट्रोल में लाने के लिए, और मतलब उससे बचने के लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिए, और आप अपने नेबर्स को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से आप बोलोगे, और कैसे उनको मतलब बचा सकते हो कोविड से। तो ऐसे मतलब कि एक टॉपिक मेरे को दिया गया, उसके लिए मेरे को 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए दिया गया, और 2 मिनट के लिए मतलब मेरे को बोलने के लिए टाइम दिया गया। Once I was done with this group discussion, basically it wasn't a group discussion, but the name of this interview was given as group discussion. एक बार जब ये complete हो गया, and after that I had my technical interview. So if you want to join EPAM system, then you have to be really good in Java, basically the Java OOPS concept. सो जावा के जितने भी कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिटेंस हो गया, फिर आपका इनकैप्सुलेशन हो गया, देन आपका पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, उसके एक्सेस मॉडिफायर्स, वो सब की नॉलेज आपको काफी अच्छी होनी चाहिए अगर आप ईपीएम सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम इन ईपीएम सिस्टम वर्क्स ऑन जावा। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है ईपीएम सिस्टम में जिसमें वो नहीं चाहते कि आप लैग करो जावा के कॉन्सेप्ट पे। सो मेरे से पूरा जावा का पूरे कॉन्सेप्ट पूछेगा, जो कोई भी आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हो एक फ्रेशर्स को पूछा जा सकता है, मल्टी थ्रेडिंग से लेके एक्सेप्शन से लेके कलेक्शंस, ऊप्स कॉन्सेप्ट एंड ऑल अदर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वाज आस्क्ड इन जावा. After when my this interview was over, I was called for an HR round. So HR round was like just like a formality type. So okay, in that there was a person who asked me some of the basics questions, like HR questions, like where do you stay, what you like to do apart from coding and participating in like hackathon, what are the other things you are interested in, what's your career goal, what you want to become in life, and where do you see yourself after like 3-4 years after now. So all these questions were asked to me, and that round also went pretty well. And after 1 week after that, I received an offer from EPAM system for the position of junior software developer. So one thing that I really liked about after interviewing at EPAM system was that initially before the interview they asked us which language you want to work on in case if you are selected for the position. So ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अब हमको प्रायोरिटी दी थी, हमसे पहले ही पूछ लिया गया था कि इन केस इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर द रोल तो आप कौन से टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहेंगे। उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, एक तो था जावा, एक था जावास्क्रिप्ट और एक था .NET. तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको उसी टीम में डाला जाएगा। तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। वन थिंग दैट आई डिडंट like about this recruitment process was that it nearly took 1 year. So that's a long way, right? 1 year waiting for like an offer letter from a company, like it's really a long time. So that's the one thing that I didn't like about the
like the recruitment process. But overall it was really a good experience. PIP program में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. जावा के तो पूरे concept जो है brush up हो जाएंगे. Maybe that might not be useful in this interview, but in the other interviews it might be useful, because because there are many companies which will ask you like Java, right, in their interview. So this knowledge is going to be useful in some other companies also. So I hope that this video is useful for you guys, and thank you for watching, and please do like and subscribe. Thank you so much, guys. Bye.